معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے ولی عہد محمد بن سلمان اور نتن یاہو کی خفیہ ملاقات کے دعوے کو مسترد کیا۔ ٹرمپ نے کڑوا گھونٹ پی لیا، بائیڈن کو اختیارات منتقلی کی منظوری۔ اگلے سال کا حج کیوں مہنگا ہوگا؟ مختار عباس نقوی نے بتائی یہ اہم وجہ۔ کراچی ایک دن ہندوستان کا حصہ ہوگا، دیویندر۔ لو جہاد اپنے شریک حیات کے انتخاب کا سب کو اختیار، حکومت دخل نہیں دے سکتی، ہائی کورٹ۔ مودی حکومت میں 2 بڑے لو جہادی موجود، منور رانا۔ IMA گھوٹالہ، سابق ریاستی وزیر روشن بیگ کے بعد ایک اور ملزم کو CBI نے کیا گرفتار۔ نتیش کمار پہلے لو جہاد پر قانون لائیں پھر ہم سوچیں گے۔ حیدرآباد بارش کے متاثرین کو 50,000 روپے دینے کا کانگریس کا وعدہ۔ تلنگانہ و ساحلی آندھرا میں پھر ایک بار بارش کی پیش قیاسی۔ صرف TRS فرقہ پرست طاقتوں سے مقابلے کی اہل۔ ضلع کڑپا میں آئندہ 2 دنوں میں زبردست بارش کا امکان، احتیاطی اقدامات کرنے ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن کے احکامات۔ ضلع کڑپا میں آج کووڈ-19 کے 57 مریض مصدقہ، جملہ تعداد 54,319 ہو گئی۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے ولی عہد محمد بن سلمان اور نتن یاہو کی خفیہ ملاقات کے دعوے کو مسترد کیا۔ میڈیا رپورٹوں میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ بنجامن نتن یاہو اتوار کو سعودی عرب کے شہزادے اور ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملنے کے لیے نیوم شہر پہنچے۔ اس دوران اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ یوسی کوہن بھی موجود تھے۔ Whether or not they succeed, the kind of message that sends throughout the region, obviously something that Netanyahu and Mohammed bin Salman would want to be in touch with each other about. ٹرمپ نے کڑوا گھونٹ پی لیا، بائیڈن کو اختیارات منتقلی کی منظوری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کڑوا گھونٹ پی لیا، نو منتخب صدر جو بائیڈن انتظامیہ کو اختیارات منتقلی کی بالآخر منظوری دے دی۔ اس طرح کئی ہفتوں سے جاری ٹال مٹول انجام کو پہنچ گئی۔ سربراہ جنرل سروس ایڈمنسٹریشن ایملی مرفی نے نو منتخب امریکی صدر کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں قانونی جنگ جاری رہے گی، مگر انتظامیہ سے کہہ دیا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اسے انجام دیا جائے۔ Hello, my fellow Americans, and the people who brought me to the dance, Delawareans. I see my buddy Senator Tom Carper down there, and I think Senator Coons is there, and I think the governor's around. اگلے سال کا حج کیوں مہنگا ہوگا؟ مختار عباس نقوی نے بتائی یہ اہم وجہ۔ اقلیتی وزیر نے کہا کہ ہمارا سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کے ساتھ ماہ دسمبر میں 2 طرفہ معاہدے طے ہونے والا ہے، جس میں دیکھا جائے گا کہ ہمیں کتنا کوٹا مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے پیش نظر عازمین کی عمر کی حد کو بھی 18 سے 65 برس تک محدود کر دیا گیا ہے۔ حج سعودی عرب کے ذریعے حج کے کینسلیشن یا جو فارن سے سعودی عرب کے باہر سے آنے والے حج یاتری ہیں ان کو انہوں نے ریکویسٹ کی ہوگی روکنے کی، اس سے پہلے تمام ملکوں نے جو ہے وہ اپنے یہاں سے کینسل کر دیا تھا، جس میں تمام بڑے بڑے ملک بھی موجود تھے۔ لیکن ہندوستان نے طے کیا، ہم سب نے مل کر کے طے کیا کہ ہم اس جو پینڈیمک پیریڈ ہے اس سنکٹ کے گھڑی میں ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، اور جو بھی سعودی عرب ڈیسیژن کرے گی ہم اس ڈیسیژن کے ساتھ جائیں گے۔
कराची एक दिन हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। देविंदर। मुंबई में मिठाई की दुकान कराची स्वीट्स के नाम पर तनाज़ुर के बारे में पूछने पर कायद अपोजिशन देविंदर ने पीर के दिन कहा कि पड़ोसी मुल्क का ये शहर एक दिन हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। चंद दिन कबल एक वीडियो में शिवसेना के नितिन नंदगांवकर को बांद्रा वेस्ट की कराची स्वीट शॉप के मालिक से ये कहते सुना गया था कि वो अपनी दुकान के नाम से कराची का लफ्ज़ हटा दें। ये वीडियो वायरल हुआ था। इस वाक़ये पर साबिक़ वज़ीर आला देविंदर ने 21 नवंबर को कहा कि हम वो लोग हैं जो अखंड भारत में विश्वास यकीन रखते हैं। के नाम में विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ उनको मराठी स्वीट्स का दिया जा रहा है, तो संजय राउत बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है कराची 70 साल से वहाँ पे कराची स्वीट्स? देखिए, हम तो अखंड भारत मानने वाले लोग हैं और हम तो ये मानते हैं कि एक दिन कराची भी भारत का हिस्सा होगा। कांग्रेस बीएमसी अकेले लड़ना चाहती है, क्या कहेंगे? लड़ ले, कोई भी लड़ ले, हम तो तैयार। लव जिहाद अपने शरीक हयात के इंतखाब का सबको इख्तियार, हुकूमत दखल नहीं दे सकती। हाई कोर्ट। कशीनगर के रिहायशी सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार के मामले की समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि कानून एक बालिग औरत या मर्द को अपना शरीक हयात चुनने का इख्तियार देता है, कोई उनकी ज़िंदगी में दखल नहीं दे सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है एक मामले में सुनवाई करते वक्त कि दो बालिग अपना जीवन साथी चुनने के लिए आजाद हैं, उन्हें अधिकार है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सबको जीवन साथी चुनने का हक है, नहीं दखल दे सकती उसमें सरकार, यानी सरकार को भी उसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। मोदी हुकूमत में दो बड़े लव जिहादी मौजूद। मुनव्वर राना। उत्तर प्रदेश लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की सिमत बढ़ रही है। ऐसे में उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना ने पीर के दिन रियासत की बीजेपी हुकूमत पर तंज किया। उन्होंने कहा कि नए कानून का सबसे पहले इस्तेमाल भगवा जमात के कायदीन और उनके अरकान ख़ानदान के ख़िलाफ़ होना चाहिए जिन्होंने अपने फ़िरक़े के बाहर शादी कर रखी है। हिंदी में ट्वीट में मुनव्वर राना ने कहा कि हम लव जिहाद मुखालिफ कानून की सिर्फ इस शर्त पर तायद कर सकते हैं कि उसकी शुरुआत मरकज़ी हुकूमत में बैठे दो बड़े लव जिहादियों से की जाए ताकि दो मुस्लिम लड़कियां उनसे शादी कर सकें। तमाम बीजेपी कायदीन और उनके अहल खाना के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अपने मज़हब के बाहर शादी कर रखी है। मौजूदा हुकूमत तो यही चाहती है, बस एक लव जिहाद लव जिहाद। अरे साहब, जिहाद का जो जज्बा है लड़ाई का झगड़े का इसका, उसको खत्म करने के लिए ही तो लव किया जाता है। यानी औरत मर्द की बात नहीं है, लव की बात अगर है तो अगर आप में मुझ में झगड़ा है तो इसी को खत्म करने के लिए तो मोहब्बत की जाती है। जो दो दुश्मनों में हाथ मिलाया जाता है तो वो इसी मिलाया जाता है कि झगड़ा ना बढ़े। तो लव जिहाद का मतलब जो हमारे योगी जी या योगी जी के जो सब निकालते हैं वो मतलब हुआ ही नहीं। IMA घोटाला। साबिक रियासती वजीर रोशन बेग के बाद एक और मुलजिम को CBI ने किया गिरफ्तार। हलाल सरमायाकारी के नाम पर हुए IMA घोटाले में CBI की तहकीकात में अब तेज़ी दिखाई दे रही है। कर्नाटक के साबिक रियासती वजीर और रोशन बेग के घर पर आज CBI ने अचानक छापा मारते हुए बड़े पैमाने पर छानबीन की कार्रवाई अंजाम दी। CBI का ये छापा रोशन बेग की गिरफ्तारी के एक दिन बाद हुआ। में होको है, मीरा में होको है, सब होको है। हमारा मकसद एक ही है, आइंदा कौन आदमी भी ऐसा सिर उठा को आदमी को ऐसा गुमराह कर को इसके भी पैसा धोखा करना नहीं। और क्या है, हिम्मत से बैठेंगे। और पुलिस वाले से हमारी एक ही गुजारिश, हमें आपको किसी भी हमें आपको लाशम फोड़ने के वास्ते को नहीं तकलीफ देने के वास्ते नहीं आपको ही। और एक आजीजा जना गुजारिश। नीतीश कुमार पहले लव जिहाद पर कानून लाएं फिर हम सोचेंगे। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने पीर के रोज़ कहा कि पहले नीतीश कुमार के ज़ेर क़ियादत बिहार हुकूमत को मुबैना लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून लाने दें, उसके बाद महाराष्ट्र हुकूमत इस पर गौर करेगी। जदयू ने श्री राज के सिंह के मुतालिबे पर साफ कर दिया है कि ऐसे किसी भी मुतनाज़ उमूर पर
जेडीयू बीजेपी का साथ नहीं देगी। संजय रावत ने यह भी कहा कि बंगाल इलेक्शन के लिए बीजेपी इस मसले को उठा रही है। संजय रावत ने यहां नामा निगारों को बताया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के कुछ सीनियर लीडरान लव जिहाद के खिलाफ कानून का मुतालबा कर रहे हैं। अगर कोई नेता कहता है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है तो उनको सम्मान के साथ विदाई देनी चाहिए। मुझे लगता है बिहार की जनता इस विदाई का मौके का इंतजार कर रही थी। ये चुनाव में उनको जनता रिटायर कर देगी। हैदराबाद बारिश के मुतासरीन को 50,000 रुपये देने का कांग्रेस का वादा। तेलंगाना कांग्रेस ने जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में मंशूर जारी कर दिया गया। पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में यह मंशूर जारी किया गया। इस मंशूर में वादा किया गया कि सैलाब मुतासरीन को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जिन अफराद के मकानात को सैलाब से नुकसान पहुंचा है उनको मकानात की तामीर के लिए 2.5 से 5 लाख रुपये की इमदाद दी जाएगी। सैलाब में मरने वाले अफराद के ख़ानदानों को फ़ीकस 25 लाख रुपये माली मदद, तलबा, ख़वातीन और माज़ूरीन को MMTS ट्रेनों में मुफ्त सफ़र की सहूलत, प्राइवेट तालीमी इदारों में फ़ीस पर कंट्रोल करने के इक़दामात, सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात करने का वादा किया है। మన ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినట్టుగా వరద బాధితులకు సహాయార్థం అని చెప్పని జిహెచ్ఎంసీలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాగానే బాధిత ప్రతి కుటుంబానికి కూడా 50,000 రూపాయల చొప్పున ఇవ్వాలని చెప్పని, అదేవిధంగా పూర్తిగా దెబ్బతిన్నటువంటి ఒక గృహాలన్నిటికీ కూడా 5 లక్షల రూపాయలు మరియు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నటువంటి ఒక కుటుంబాలకు ఇండ్లకు 2.5 లక్షల చొప్పున సహాయం అందించాలని చెప్పని ఈ ఒక మేనిఫెస్టోలో పొందుపరచడమైంది। तेलंगाना व साहिली आंध्रा में फिर एक बार बारिश की पेश क़ियासी। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी और तूफ़ान नेवार के सबब तेलंगाना और साहिली आंध्रा में फिर बारिश की पेश क़ियासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी और तूफ़ान नेवार के सबब 25 और 26 नवंबर को तेलंगाना के बेशतर अजला के अलावा साहिली आंध्र प्रदेश में बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता माह की शदीद बारिश के बाद अब दोबारा तेलंगाना व आंध्रा में बारिश की पेश क़ियासी के बाद दोनों रियासतों में हुक्काम ने एहतियाती इक़दामात का फ़ैसला किया है। सिर्फ TRS फ़िरक़ा परस्त ताकतों से मुकाबले की अहल। ग्रेटर बल्दी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम शिद्दत इख्तियार कर रही है और तमाम पार्टियां अपने अंदाज में वोटर्स को राग़िब करने में मसरूफ़ हैं। हैदराबाद की रिवायती तहज़ीब और तमद्दुन का तहफ़्फ़ुज़ राय दहिंदों की अव्वलीन तरजीह है, जिसके नतीजे में अवाम बीजेपी के फ़िरक़ा वाराना एजेंडे की खुलकर मुखालिफत कर रही है। इंतखाबी मुहिम में बीजेपी की फ़िरक़ा वाराना पॉलिसी को देखते हुए अवाम का एहसास है कि हैदराबाद में फ़िरक़ा परस्त ताकतों का मुकाबला सिर्फ TRS से मुमकिन है। TRS గెలుస్తుంది ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? ఎందుకంటే వాళ్ళదే పార్టీ కదా, రన్నింగ్ పార్టీ। ఇంతకుముందు వాళ్ళే గెలిచిరు ज़िला कड़पा में आइंदा 2 दिनों में ज़बरदस्त बारिश का इम्कान। एहतियाती इक़दामात करने ज़िला कलेक्टर कड़पा हरिकिरण के अहकामात। ज़िला कलेक्टर कड़पा हरिकिरण ने अपने एक अखबारी बयान में कहा कि 25 और 26 नवंबर को ज़िला कड़पा में महकमे मौसमियात की जानिब से भारी बारिश होने, गरज चमक के साथ बारिश होने, तेज़ हवाएं चलने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जिसे देखते हुए आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। खुसूसन मिट्टी के घरों और कदीम तरस के मालिकाने मकान से एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। साथ ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अहदेदारों को किसी भी नागहानी की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई है। नशेबी इलाकों और नदी के किनारे बने हुए मकानों के मालिकों से भी एहतियात बरतने पर जोर दिया गया है। ज़रूरत पड़ने पर नशेबी इलाकों और पेना नदी, कंदू नदी से मुत्तसिल इलाकों के अवाम दीगर ऊंचे मकामात या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बनाए गए कैंपों में मुंतकिल हो जाएंगे। घाट रोड पर चलने वाले कार स्कूटर वालों से इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि पहाड़ों से पत्थर नीचे गिरने का इम्कान रहता है। कड़पा कलेक्टर ऑफिस में 24 नवंबर से
इस सिलसिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका नंबर 08562245259 जो 24 घंटे कारगर रहेगा। आवाम से किसी भी नागहानी सूरत हाल के मौके पर इस नंबर पर इतला देने की ख्वाहिश की गई है। शहर कड़पा में रॉयल इनफील्ड बुलेट गाड़ियों में इजाफी आवाज़ रखने वाले सिलेंडर्स लगाने पर सख्त कार्रवाई। डीएसपी कड़पा सुनील। ये न्यूज़ के एमडी रफ़ी साहब की खुसूसी रिपोर्ट। डीएसपी कड़पा सुनील के अहकाम के तहत आज कड़पा डिवीज़न के हदूद में वाक़ पुलिस स्टेशनों की हदूद में रॉयल इनफील्ड गाड़ियों में ज़्यादा आवाज़ वाले साइलेंसर नस्ब करने पर सख्त कार्रवाई की गई। बड़ी तादाद में रॉयल इनफील्ड गाड़ियों को जब्त करके ट्रैफिक पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पर डीएसपी कड़पा सुनील के तमाम स्कूटर वालों से अपनी गाड़ियों से आवाज़ के साइलेंसर निकालने की हिदायत की। साउंड पोल्यूशन के खिलाफ इंतबाह दिया। डीएसपी कड़पा सुनील से ये न्यूज़ के एमडी रफ़ी साहब की खुसूसी बातचीत। మెకానిక్ మేమే తెప్పిస్తానన్నా నీకు తెలుసు నేను తెప్పిస్తాను ఇప్పుడు ఒక మెకానిక్ అన్నింటిని మార్పించాం లేదా 4-5 మెకానిక్ మీ మాటలు ఎక్కువ వింటే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సౌండ్స్ వస్తున్నాయి చూడు ఏ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సౌండ్స్ వస్తున్నాయి చూసుకో। ज़िला कड़पा में आज कोविड-19 के 57 मरीज़ मुसद्दिक़ा, जुमला तादाद 54,319 हो गई। रियासत आंध्र प्रदेश ज़िला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, ज़िला कड़पा में कोरोना वायरस के मामलों में कमी का रुझान जारी है। आज 57 मरीज़ मुस्बत पाए गए, जिससे ये तादाद बढ़कर 54,319 हो गई। आज 65 मरीज़ मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। ताहाल 53,492 मरीज़ मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज तक 520 मरीज़ों की मौत इस वबा से वाक़ई हुई है। महकमा पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस के इंसदाद में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मुत्तर अली खान की रिपोर्ट। ज़िला एसपी कड़पा KKN अनवराजन के अहकाम के तहत ज़िला भर में बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले 52 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 26,070 रुपये जुर्माना आयद किया गया। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।